So today we are going to start, or in this lecture we are going to start with a new topic that is called as external commercial borrowing, ECB, right? और ECB के जो guidelines है, these guidelines were changed on 16th January 2019. So earlier the ECB guidelines were there, but that those ECB guidelines are now changed. Further, if you just see, this is just the RBI circular that I have downloaded from RBI's website. हम इसी के साथ साथ में कवर करते जाएंगे एंड देन यहाँ पे स्लाइड्स में जो मैं आपको नॉर्मली बनाकर समझाते रहता हूँ यहाँ पे ऑल दोस दिस वे, सो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग हियर. योर मॉड्यूल माइट नॉट बी अपडेटेड. Your module might not be updated with this because again ECB guidelines have been changed. So it is quite possible that your modules are not updated. So what is the way to find out whether the module is updated or not? What you have to see, there are three routes. मैं आपको आगे बता दूंगा. There are three routes of borrowing. So track 1, track 2, track 3. आपके मॉड्यूल में अगर तीन ट्रैक्स दिख रहे, track 1, track 2, track 3, in that case your module is not updated. If your module states only two tracks, track 1 and track 2, then it means it is updated. Now don't get worried about कि sir track 1 track 2 क्या है and all those things. ये सब technical terms है, but मतलब कुछ नहीं है. The way you can borrow the money, ठीक है? So ये आपके पास पूरा circular है. हम इस circular के ऊपर वापस आएंगे, but right now we can just start with the ECB guidelines as it is, जैसे यहाँ पर आपको मैं provision समझाता हूँ, ठीक है? So just try to focus on each and every point that I'm explaining it to here. और आप धीरे धीरे करके इसको पूरा समझते जाओगे. देखो, when we talk about ECB, what does ECB stands for? ECB stands for external commercial borrowing. Okay. What do you mean by borrowing? Borrowing means debt. जब आप किसी से उधार ले रहे हो, ठीक है? कॉमर्शियल मतलब it is related to business purpose. It is not a personal loan that you are taking. It is for the business purpose. Okay. And here the word external denotes. So otherwise external denotes means from outside. So here the external denotes that you are raising money from outside India. So there is a debt which is for the business purpose and it is raised from outside India. Debt, ये debt का purpose है और ये debt का source है, ठीक है? अब ट्रैक 1 ट्रैक 2 जो है, देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इन केस आपके दिमाग में ये सेट हो जाए. व्हाट इज ट्रैक 1, व्हाट इज ट्रैक 2? सो देखो, देयर आर टू सोर्सेस. एक है जिसको हम बोलते हैं ट्रैक 1 और एक होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैक 2, राइट? अब आप फॉरेन से लोन रेज कर रहे हो, सो इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर रेजिंग द लोन इन फॉरेन करेंसी और इट इज पॉसिबल that we are raising fund in the Indian rupee. So foreign currency denominated ECB और you will have a Indian rupee denominated ECB. So ये दो आपके पास यहाँ पर ECB मिलेंगे. So we'll understand कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे आप इसको रेज कर सकते हो. इट्स अ वेरी शॉर्ट चैप्टर. ये आज ही के लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, not just in executive but also in your professional level. You'll be getting a lot of questions from ECB. So when I teach corporate restructuring in professional, there again the reference of ECB comes and literally I have to explain the entire ECB from scratch, just like how I'm explaining it to you all. So first and foremost अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया that external commercial borrowing है. Now since you are raising money from outside abroad, so who is going to come into picture? It is going to be Reserve Bank of India, of course. Now in case of external commercial borrowing, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, दो ट्रैक्स रेडी कर दिए. So one is track 1. Track 1 is what? It is a medium term foreign currency loan.
सो एफ सी डिनोट्स फॉरेन करेंसी। अदरवाइज आपको एक यहां पर मिलेगा ट्रैक टू। ट्रैक टू इज योर इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी बॉन्ड। So this is Indian rupee denominated ECB, or you'll also get something called as masala bond। हम यहां पर देखते हैं कि ये ट्रैक वन ट्रैक टू क्या है। इसके अलावा यहां पर आपको देखना होगा कि ये ECB हम कैसे रेस कर सकते हैं। सो ये दो ट्रैक है। इसके अलावा हम यहां पर देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ECB जो हम यहां पर रेस कर सकते हैं। फर्दर हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द अवेलेबल रूट्स। करेक्ट। आपको पता है कि कुछ रूट्स आपके क्या होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, सम ऑफ द रूट्स एफडीआई और के अंदर भी आप देखो, सम ऑफ द रूट्स आर व्हाट, बेसिकली दे आर ऑटोमेटिक। मतलब आपको परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, यू कैन स्ट्रेट अवे टेक इट। द अदर इज द अप्रूवल रूट। one is the automatic route, another is the approval route. So we'll have to understand what is the ऑटोमेटिक रूट एंड व्हाट ऑल कम अंडर द अप्रूवल रूट। इसके अलावा हमें यहां पर समझना होगा हु आर द एलिजिबल बोरोवर्स, राइट। हु आर द एलिजिबल बोरोवर्स, सो विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल कि कौन कौन यहां पर आपको पैसा दे सकता है। इसके अलावा हम यहां पर चेक करेंगे व्हाट इज गोइंग टू बी द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड। एंड माइंड इट, ऑल दिस कैन बी योर एग्जाम क्वेश्चन, करेक्ट। व्हाट इज गोइंग टू बी योर टेन्योर, देन अगेन सेम वे एलिजिबल बोरोवर्स, तो इसी के साथ अपने पास आ जाएगा एलिजिबल लेंडर्स। आप किससे पैसा रेज कर सकते हो? क्या आप और मैं पैसा बोरो कर सकते हैं? क्या कोई भी आकर हमें बोरोइंग दे सकता है ECB? सो विल हैव टू सी दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल आल्सो हैव टू सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लोन। We just saw that external commercial, so business purpose. So is it allowed for all the business purpose, or we have some restrictions? So purpose or end use, we are going to see this। apart from that अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ECB के अंदर आपके पास आएगा something called as all in ceiling cost, right? So this will be all in cost जिसमें आ जाएगा आपका ceiling। मतलब what is the maximum expense you can incur to raise these bonds। तो हमें ये यहाँ पर समझना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो सी द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कि ECB का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर क्या है। देन वी विल ऑल्सो सी समथिंग कॉल्ड एज पार्किंग ऑफ ECB। पार्किंग का क्या मतलब होता है कि आपने एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को बोरो, यू हैव टेकन दैट लोन, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। अब वो बोरोइंग को आप क्या करना चाहते हो, अभी एक बार होल्ड पे रख रहे हो, राइट। एंड व्हाई होल्ड पे रख रहे हो? बिकॉज अगेन यू हैव you know the purpose for which it was taken, that has been deferred, or the actual deployment is deferred. So in that case we'll see here. Apart from that we will see how do we convert the ECB into equity। हम इसको इक्विटी में कैसे कवर कन्वर्ट करेंगे, विल सी दैट। इसके अलावा अगर आप देखो तो हम यहाँ पर चेक करेंगे समथिंग कॉल्ड एज, मतलब बेसिकली आपके जो कि फॉर्म्स है इसी फॉर्म्स के अंदर सब कुछ आएगा, एंड दिस समथिंग कॉल्ड एज masala bond। So there will be a lot to know, a lot to discuss, right, as always। So let's pick up with the concept of ECB। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि सर फॉरेन करेंसी में लोन कोई क्यों लेगा और इंडियन रुपी में कोई लोन क्यों लेगा। ठीक है, तो आप ऐसे एग्जांपल लो। लेट्स से दिया इज इन इंडिया, ओके। दिया इज इन इंडिया और शी नीड्स लोन फ्रॉम, लेट्स से, जापान। सो जापान में देर इज वन लेंडर, लेट्स से सॉफ्ट बैंक, और ये है बोरोवर। So there are two ways of taking or availing the ECB।
दिया जापान से क्या बोल सकती है, देखो आपको पता है मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, इंटर कंट्री ट्रांजैक्शंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस इन द इंडियन रुपी। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट और ये चाहे तो अब जैसे क्योंकि जापान के साथ इनका बात हो रहा है, सो दे कैन ऑल्सो ट्रेड इन येन, दे कैन ऑल्सो ट्रेड इन रुपीज, राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट लेट्स प्रेस्यूम इसने जापान से यूएस डॉलर 1 लाख अवेल किया, $1 लाख इसने अवेल किया, और ये $1 लाख इसके पास आ गया। आज की डेट में डॉलर का जो रेट है दैट इज व्हाट, दैट इज 70 रुपीज। सो यहां पर इन शॉर्ट अगर आप चेक करो, सो दिया हैज रेज्ड अ लोन ऑफ 70 लाख रुपीज, yes or no? And this is, I say, in the financial year 2020, and this is not a short term loan, this is a medium term loan, which means this 70 lakh rupees is due for repayment in, let's say, 2024. Okay, this will be due for repayment in financial year 2024. अब एक चीज आप देखो, सिंस इट्स अ डेट, सो दिया हर साल यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे करेगी। सो इंटरेस्ट इज वन कॉस्ट विच शी इज गोइंग टू बेयर। नाउ 70 lakh rupees, since this is a commercial loan, she is going to deploy it in the business. So when she deploys this 70 lakh rupees in the business, there is one risk which she is taking. One is what? One is called as the business risk. Now what is the business risk? It is quite possible जो ये 70 लाख रुपीस इन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है, उससे इनको लॉस हो जाए एंड शी इज नॉट एबल टू रिकवर 70 लाख रुपीस, क्वाइट पॉसिबल। और इट इज पॉसिबल दैट शी में गेन प्रॉफिट, राइट, गेन उनको हो, बट प्रॉब्लम ये कि सरप्लस जनरेट नहीं हो। सर व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस जनरेट होना? इस 70 लाख रुपीस के ऊपर शी हैज टू पे एवरी ईयर 5 लाख रुपीस का इंटरेस्ट, और लेट्स से 10% इंटरेस्ट ये पे करते, शी हैज टू पे 7 लाख रुपीस का इंटरेस्ट। नाउ व्हाट शी इज अर्निंग, so here I say the balance goes below 70 lakhs. Here I say the balance is above 70 lakh, but she is not able to recover the interest cost. क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कैसा है, इनका प्रॉफिट है लेट्स से 5 लाख रुपीस, वेयर एज द इंटरेस्ट कॉस्ट इज 7 लाख रुपीस, द इंटरेस्ट कॉस्ट इज 7 लाख रुपीस। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? तो सर ये गेन कैसे हुआ? गेन मैं आपको ये बता रहा हूँ, शी इज मेकिंग अ प्रॉफिट बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। और तीसरा हो सकता है दैट शी इज जनरेटिंग सरप्लस। नाउ आई होप दिस मेक्स अ सेंस दैट हियर शी इज गेटिंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सरप्लस जनरेट कर रही है, वेर आई वुड से हर प्रॉफिट इज लेट्स से 10 लाख रुपीस, विच इज मोर देन द इंटरेस्ट कॉस्ट। आप मुझे बताओ, कैन यू गारंटी एनी ऑफ द थ्री सिचुएशंस? क्या आप ये तीनों सिचुएशंस को गारंटी कर सकते हो? आंसर इज नो। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क। सो जब दिया ने 70 लाख रुपीस का लोन लिया और लेट्स से $1 लाख का इन्होंने लोन लिया, शी इज टेकिंग वन रिस्क विच इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क। दैट बिजनेस चल भी सकता है और बिजनेस नहीं भी चले, और नहीं चला तो यहाँ पर इसको लॉस हो जाएगा, राइट? सो शी इज टेकिंग वन रिस्क हियर। द अदर रिस्क इज व्हाट? In financial year 2024, can you say what is going to be the exchange rate? What is going to be $1 equal to what amount of rupee? Can you say this? So it is quite possible that ये जो 70 rupees है, and why 70 rupees is relevant? Because when she availed this ECB, at that point of time the exchange rate was 70, which means she got 70 lakh rupees. So it is quite possible that ये 70 lakh rupees जो है, ये जो 70 rupees है, this may go up. So let's say this may go up to 85 rupees. It is quite possible that it may remain 70, or you can say that this may even go down to 60 rupees. ये तीनों में से कोई भी सिनेरियो हो सकता है, yes or no? Now what is going to happen अगर ये 85 rupees हो गया तो, if this becomes 85, she has to repay 70 lakh rupees or she has to repay $1 lakh? The answer is she has to repay $1 lakh. Why she has to repay $1 lakh? Because she has borrowed $1 lakh.
बट सर हम तो पूरा कैलकुलेशन 70 लाख के हिसाब से कर रहे हैं. दैट इज बिकॉज दिया इज इन्वेस्टिंग 70 लाख रुपीज, बिकॉज वेन वी कन्वर्टेड this $1 lakh of loan to Indian rupee, she got 70 lakh rupees. But her loan principal loan amount is still what? It is still $1 lakh and not 70 lakh rupees. So here Dia has to repay 1 lakh dollar. So her repayment amount is what? It is US dollar 1 lakh. Now you check. When we talk about 85 rupees, if the exchange rate is 85 rupees, she will have to repay 85 lakh rupees. Yes or no? तभी तो loan repayment होगा. If the dollar is 70, there is no problem. She took a loan of 70 lakh rupees और वो 70 lakh का ही principal amount repay कर रही है. अगर 60 हो गया तो यहाँ पर दिया को गेन हो जाएगा, because then her repayment amount is what? It is 60 lakh. तो it will be as good as she has made a profit of 10 lakh rupees, क्योंकि आपने borrow 70 लाख रुपीस किया था और रीपे कितना कर रहे हो? 60 लाख. तो सर हम डॉलर में कैलकुलेट कर ही क्यों रहे? अरे भाई आप एक चीज चेक करो, आप डॉलर में ही रीपेमेंट करोगे. आपको ये चेक करना है. सी, जापान सॉफ्ट बैंक जो होगा वो क्या बोलेगा? आई लेंट यू 1 लाख रुपीस का प्रिंसिपल, $1 lakh का प्रिंसिपल अमाउंट, करेक्ट? सो आई नीड दिस प्रिंसिपल अमाउंट बैक इन डॉलर्स ओनली. सो शी हैज टू पे $1 lakh. बट द कॉस्ट ऑफ रीपेमेंट इज व्हाट? आपको ये चेक करना है. सो इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा? 70 लाख. सो सॉफ्ट बैंक को तो 1 लाख पे 1 लाख ही मिलेगा, प्लस द इंटरेस्ट सॉफ्ट बैंक इज गेटिंग. बट एज फार एज दिया इज कंसर्न, दिया विल हैव टू pay 85 lakh rupees if the exchange rate goes up to 85 rupees, whereas she had borrowed, or what, out of the borrowing she had got only 70 lakh rupees. Does this make sense? Does this make sense? ये जो मैंने आपको समझाया, right? So apart from the business risk जो inevitable है, इसको आप avoid कर ही नहीं सकते, she is also taking the currency risk. She is also taking the currency risk. And currency risk क्या हो जाएगा? That the cost of borrowing may go up. And why? Why the cost of borrowing may rise significantly? This is due to the change in exchange rate. So when she borrowed the money, at that point of time, the exchange rate was less, and at the time of repayment, the exchange rate has gone up. Correct? So just for example, I write it this way. $1 is equal to rupees 70. In here I say $1 is equal to 85. Or I can say that during the repayment the home currency got weakened. है कि नहीं? हमारे लिए home currency क्या है? रुपी. और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? रुपी depreciate हो गया. So during the time of repayment the home currency got depreciated. The home currency got depreciated. So ये दो तरीके का risk है. So if Dia is comfortable in taking this risk, she will avail the loan in what? She will avail the loan in foreign currency. Okay. But if she wants to give away this risk, she doesn't want this risk. Okay. देखो business risk को तो avoid कर ही नहीं सकते. This is what? This is unavoidable. But अगर करेंसी रिस्क है इसको अवॉइड किया जा सकता है. एंड हाउ कैन करेंसी रिस्क बी अवॉइडेड? सो टू अवॉइड करेंसी रिस्क यहां पर वो क्या करेंगी? देखो, द सेम लोन शी इज गोइंग टू टेक, दिस इज टू अवॉइड द करेंसी रिस्क. she'll go to SoftBank Japan, and SoftBank Japan say she is going to avail a loan of 70 lakh rupees. So now the currency risk which was on Dia, this will go with this will go to Japan, SoftBank Japan. तो SoftBank Japan यहाँ पर क्या करेगा? SoftBank Japan यहाँ पर $1 lakh को
convert करेगा. Now she is taking a $1 lakh loan only, but $1 lakh loan in Indian rupee. So SoftBank is going to convert this, and SoftBank is going to give Diya how much? 70 lakh rupees. Now दिया ने अपने आप को सिक्योर कर लिया यहाँ पे. अब कैसे सिक्योर कर लिया? एग्जैक्ट जो सिनेरियो पहले दिया का था, अब वही एग्जैक्ट सिनेरियो किसका हो जाएगा? सॉफ्ट बैंक जापान का. दैट व्हेन दिया इज गोइंग टू रीपे, at the time of repayment, what is she going to repay? Is she going to repay $1 lakh, or she is going to repay 70 lakh rupees? She is going to repay 70 lakh rupees and not $1 lakh, because इनका जो ECB था या जो फॉरेन करेंसी जो लोन था इनका, वो लोन किस में था? इन दी इंडियन रुपी. नाउ 70 लाख रुपीस को कन्वर्ट करके, ठीक है, जापानीज बैंक को कितना मिलता है? दिस अगेन डिपेंड्स ऑन द exchange rate. So here, depending on the exchange rate, करेक्ट, यहां पर जापान को हो सकता है, जो सॉफ्ट बैंक जापान है लेंडर, दे मे गेट 1 लाख रुपीज, दे मे गेट more than $1 lakh, okay, or they may get less than $1 lakh. So here the currency risk is with SoftBank Japan. अब बताओ ये समझ में आया? Did you get the whole objective? Why we have two different modes of foreign currency loan? So either it can be a two other modes of the external commercial borrowing. So either you will have a loan in foreign currency, और she will have a Indian rupee denominated external commercial bond. और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है किसका? मसाला बॉन्ड का. So what is a masala bond? Masala bond is nothing. It is Indian rupee denominated bonds. ठीक है, और ये अभी शुरू हुआ था. वेरी गुड क्वेश्चन. फोरम ने यहाँ पे पूछा है that why will Japan take the risk? Simple. If, तो यहाँ पर दो फैक्टर्स होंगे. वन इज हाउ डज द एक्सचेंज रेट बिहेव्स, और व्हाट इज द प्रेडिक्शन फॉर द एक्सचेंज रेट. ठीक है, तो एक तो आप फॉरेन एक्सचेंज रेट को देखोगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पर चेक करोगे. सो सॉफ्ट बैंक जापान को लगता है दैट यस, इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू गेट मोर देन $1 lakh. ये वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट दे आर गोइंग टू गेट दिस. सो ये आप देखो, वो 70 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो तो इंटरेस्ट होगा ही होगा इनके लिए इनकम. इसके अलावा ये जो करेंसी ट्रांसमिशन जो गेन है, यहाँ पर भी इनको गेन हो जाएगा. दिस इज आई वुड से फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन गेन दे आर ऑल्सो गोइंग टू गेट. तो सॉफ्ट बैंक जापान को ये प्रोडिक्शन लग रहा है. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग $1 lakh का लोन, वो दिया को बोलेंगे आप एक काम करो 70 लाख रुपीस का लोन ले लो, बिकॉज अल्टीमेटली आप ये $1 lakh को कन्वर्ट करके 70 लाख रुपीस में करोगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस रुपी इन इंडिया ओनली. सो व्हाई टू अवेल द लोन इन फॉरेन करेंसी, अवेल द लोन इन द इंडियन करेंसी. सो दैट्स हाउ, राइट. अब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि सॉफ्ट बैंक ऐसा बोलेगा, बट जस्ट एग्जांपल. सो सॉफ्ट जापान बैंक विल बी comfortable in taking this risk if they believe that there are strong chances that at the time of repayment the currency is going to be in their favor. And second thing, if they are not sure of this, it could be possible that Diya is ready to pay a higher interest. So if it is a, देखो, higher the risk, higher the return. आपने ये लाइन पक्का सुना होगा, है कि नहीं? बट ये गलत है. ये ऐसा होता है, higher the risk, higher would be the expected return. ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है. Higher the risk, higher will be the expected return, which means what? That if I am taking more risk, I would require a large sum of money, more sum of return for that. आप इसीलिए चेक करो, एफएम में आपने पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ डेट, cost of preference, and cost of equity. Yes or no? Why the cost of equity is always more, and why cost of preference is higher than cost of debt, and why cost of debt is always least, and why the risk free return is the lowest. Risk free return because there is zero risk. इससे थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है डेट में, सो आप रिस्क फ्री रिटर्न से ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे. देन preference carries little more risk. Let's say these all are unit of risk, I'm saying, okay, this is the unit of risk. So since you are taking more risk, you'll be expecting a higher rate of return. So when Diya was taking foreign currency loan, so Diya was taking both the business risk as well as the currency risk. So Diya will say
I'll pay a interest of, let's say, 10% because I'm taking both the risk. Lender is also okay because lender is taking lesser risk. When she takes a Indian rupee denominated loan, in that case, Dia is only taking the business risk. She's not taking the currency risk. So the SoftBank Japan may ask from Dia a higher rate of interest. So maybe SoftBank Japan would say we need a interest of 12.5%. अभी दिया क्या करती है? शी hedges her position. Hedging का क्या मतलब होता है? You have fixed your risk. You have fixed your risk. आपको पता है इससे ज्यादा आपका कॉस्ट नहीं होगा. So while investing or while making the project report of the business, जहां पर ये 70 लाख रुपीस को इन्वेस्ट करेंगी, तो इनको पता है शी हैज टू पे 70 लाख रुपीस. सो दिस इज गोइंग टू बी द इनिशियल कॉस्ट. इसके अलावा इनको इंटरेस्ट पे करना है एंड 12.5% अगर आप इंटरेस्ट देखो, सो रफली दिस वुड कम टू 70 67 7 this will be, let's say, 8.7 something. So exactly I don't know क्या अमाउंट रहेगा आपका. ओके, आई हैव द कैलकुलेटर सो आई कैन टेल यू. सो 70 लाख रुपीस पे अगर आप देखो तो 12.5% से 88 lakh 75,000 is going to be the interest, and this interest she has to pay, let's say, for a period of 4 years. तो उनको पता है कि इनका टोटल कॉस्ट कितना होगा. इनका टोटल कॉस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाएगा 35 लाख रुपीस, राइट. एंड इनका प्रिंसिपल अमाउंट है 70 लाख रुपीस. तो इनको पता है इन शॉर्ट मेरा बिजनेस में 1 करोड़ 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट होना है एंड आई एम गोइंग टू गेट अ रिटर्न ऑफ, लेट्स से, 1 करोड़ 20 लाख रुपीस. सो शी इज ऑल्सो विलिंग टू पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बिकॉज उसको पता है ये इंटरेस्ट पे करने के बाद भी उनको रिटर्न कितना मिलने वाला है, 15 लाख का सरप्लस जनरेट हो जाएगा उनके लिए. ठीक है. सो दिस इज अ डिसेंट नंबर व्हाट शी फील्स, राइट. टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एवरीथिंग, द प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑल. हम एफएम के उतने ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे बिकॉज दिस इज नॉट द एफएम लेक्चर वी आर डूइंग, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. शी इज रेडी टू पे दिस 12.5% interest versus 10% because she is assured that this is going to be her fixed cash outflow. इससे ज्यादा उनको पे नहीं करना. So if she has to make profit, उनको पता है 1 करोड़ 5 लाख के ऊपर जो भी मैंने अर्न किया वो मेरा प्रॉफिट होने लग जाएगा. सो इट इज क्वाइट पॉसिबल शी में गेट अ हायर रिटर्न, लेसर रिटर्न और वट एवर, बट 1 करोड़ 20 लाख इनका यहाँ पर फिक्स्ड हो गया. हावेवर अगर इन्होंने फॉरेन करेंसी में लोन लिया, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट इसका आउटफ्लो जो हो 1 करोड़ 5 लाख से भी ज्यादा हो जाए. It is possible it may exceed 1 crore 20 lakh also. Let's say it was a government tender which she had taken. तो गवर्नमेंट टेंडर में इनको पता था कि 1 करोड़ 5 लाख का मेरा कॉस्ट हो जाएगा और 15 लाख का इन्होंने प्रॉफिट ऐड कर दिया एंड शी कोटेड अ प्राइस. अब आपने टेंडर में अगर ये प्राइस को कोट कर दिया है, दिस मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोर देन 1 करोड़ 20 लाख. नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिया इज नॉट विलिंग टू टेक सो मच ऑफ रिस्क दैट कल को ये जो $1 लाख इन्होंने लोन लिया, ठीक है, ये जो $1 लाख का इन्होंने लोन लिया, ये $1 लाख का एक्सचेंज रेट 70 से बढ़ के 120 हो गया तो खत्म. शी विल अर्न नथिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वो ये सारा रिस्क को हटा देना चाहती है, तो शी हैज हेज्ड हर पोजीशन. इसको बोलते हैं हेजिंग. इन्होंने अपने पोजीशन को हेज कर लिया, इन्होंने अपने रिस्क को ब्लॉक कर दिया. सिंपल. सो दैट्स द रीजन शी इज रेडी टू टेक द इंडियन करेंसी लोन. एंड जापान को क्या फायदा हो रहा है? SoftBank Japan is getting a higher rate of interest here. So that's it. So ये आप quote याद रखना. Higher the risk, higher will be the expected return. So when the loan is availed in foreign currency, both the risk are with the Indian party. So the Indian party would pay a lesser rate of interest. But if the loan is availed in the Indian currency, then in that case, the risk is borne partly by the Indian party and partly by the foreign party. So the foreign party would definitely expect a higher rate of interest. Does this make sense? Does this make sense? ये वाला ट्रैक वन ट्रैक टू. ओके. अभी मसाला बॉन्ड क्या है हम इसके साथ कवर करते हैं. सो व्हेन वी डू दिस फॉर्म्स ऑफ ईसीबी, इसी के साथ में अपना फिनिश हो जाएगा. सो लेट्स गो अहेड एंड चेक दिस सेकेंड पार्ट. व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ ईसीबी? This is a most common question which they ask in the exam.
करेक्ट। कई बार एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको ये क्वेश्चन काफी अप्रोप्रिएट बनता है, बिकॉज दे आस्क यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हियर। करेक्ट। सो इसको मैं वैसे बाइफरकेट करके अगर आपको बताऊं, सी इफ वी जस्ट सी इट हियर, we'll discuss. Just a minute. Let me zoom in a little. Yeah. So these are the forms of ECB. Okay. These are the forms of ECB where they say one is what? It is the loan including the bank loan, the normal loan which you take. Then you have the floating or fixed rate note, bond, debentures, other than fully and compulsorily convertible instruments. Then you have trade credit, which is beyond 3 years. Then you have foreign currency convertible bond. Then you have foreign currency exchangeable bond, and then you have a finance lease. All this is what? This is foreign currency denominated external commercial borrowing. Then you have the Indian rupee denominated external commercial borrowing. जिसमें again you have this loans. Then again you have the rates. Then again you have the debentures or preference shares, but other than fully convertible into equity. Then trade credit beyond 3 years, and you also have finance lease. और ये जो यहाँ पर बोल रहा है ना वो plain vanilla rupee denominated bond, right? This plain vanilla rupee denominated bond, इसी को क्या बोला जाता है? मसाला बॉन्ड। निकनेम है इसका मसाला बॉन्ड। आई डोंट नो व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मसाला बॉन्ड। अरुण जेटली जी ने इसको स्टार्ट किया था मसाला बॉन्ड को, एंड HDFC Bank was the first bank that had raised money through masala bond. But anyway, exam में अगर आपको question मिले that what are the different forms of ECB, so आप इसमें कैसे शुरू करोगे? You write it in two parts. So you can make it this way. 2.1, and this says about the foreign currency denominated ECB. फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB के अंदर आप देखो क्या क्या आ सकता है। यू विल गेट the secured instruments or the securitized instruments. अब securitized instruments में यहाँ पर आपके पास क्या आ सकता है? You can get bond, you can get debentures, or you can get, let's say, notes. Notes is again just like debentures. ज़्यादातर अपने यूरोपियन मार्केट में इसको आप रेज करते हो, राइट? अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, दिस इंटरेस्ट कैन बी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, or this can be a floating rate of interest. Now sir, fixed or floating rate of interest क्या होता है? Fixed rate of interest, for example 10% per annum, ये आपने fixed rate of interest कर दिया. When we talk about floating rate, so आप देखो floating rate में ऐसा हो सकता है, let's say अभी आप चेक करो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को गिरा दिया, ठीक है? एक साल पहले आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए थे, उससे पहले अगर आप देखो और इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए थे। सो 2 years बैक द इंटरेस्ट रेट्स वर लिटिल हायर ऑन द हायर साइड इन December 2018 if you see, and today if you see the interest rates are again to the historical low. So depending on such kind of situation you can also keep a floating rate of interest rate. Floating rate of interest में आप क्या बोलोगे? That will fix our interest rate like this. Let's say it will be variable on something like this. So let's say LIBOR. LIBOR का क्या मतलब होता है? लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। दिस मीन्स इंटरनेशनली अगर आप चेक करो फ्लोटिंग रेट अगर आपको लोन लेना है, so it goes works like this only, that whatever the rate of interest which is being offered by one bank to the other, okay, in London, that is called as LIBOR. So our interest rate will be what? It will be LIBOR plus, let's say, 3%. So let's presume 2020 में आपका जो लाइबॉर है, लाइबॉर इज 7%. सो 7 प्लस 3, योर इंटरेस्ट रेट इज व्हाट? 10%. बाद में सपोज करो इकोनॉमी फर्निश कर रहा है, ठीक है? फर्निश नहीं, फ्लरिश कर रहा है, ओके? सो द इकोनॉमी इज फ्लरिशिंग, एंड आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ गया,
ठीक है, लाइबोर जो है वो बढ़ के 12% हो गया, सो दिस विल बी 12 प्लस 3, दिस विल बिकम 15%। लेट्स से 2022 में इकोनॉमी में थोड़ा सा क्रैश आ गया, जस्ट लाइक हाउ कोविड सिचुएशन हैज हैपेंड, एंड द इंटरेस्ट रेट्स हैव फॉलन डाउन। सो इफ द इंटरेस्ट रेट्स हैव फॉलन डाउन, दे हैव गॉन बैक टू 5%, तो आप ये देखो 5 प्लस 3%, so this has now become 8%. So ये हो गया आपका floating rate of interest. And fixed rate of interest, that is irrespective whatever the scenario will be, you will have to pay a interest rate at the rate 10% only. Now अब अगर interest rate actual में इससे ज़्यादा हो गया तो borrower को फायदा हो जाएगा, because market में अभी जो current loan आपको मिल रहा है, it is like 12% 15%, but he has to pay 10. And same way अगर interest rate fall कर गया, it has gone down to 8%, then borrower को loss हुआ, the lender has gained, because if currently he goes and lends money in the market, he would get only 8%, but since he has a fixed commitment from the borrower of 10%, he is going to get 10%, right? So ये आपका एक तरीके का सिनेरियो रहा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स में एक एक्सेप्शन है, एंड दिस इज एक्सेप्शन ऑफ your compulsorily convertible bond, right? It should not be a compulsorily convertible. So you'll have, or maybe I can write it in the second part only. Second part, you can have a non-convertible, or rather this is only fine if we write it this way, because this is respect to these bonds only. So it will be non-convertible, right? Plus this is optionally convertible, or it is, so instead of plus, it is better if we or or it is partially convertible. It should not be compulsory convertible, okay? Because compulsory convertible हो गया, then it is as good as equity, okay? So then the rules separate, the different rules will be applied here. Further, if we see the other type of ECB that we have, that is something called as foreign currency convertible bond, right? The full form of this is foreign currency convertible bond. And next you have something called as foreign currency exchangeable bond. So this is foreign currency exchangeable bond. Okay. Now what is the meaning of these two? It's very simple. The name itself distinguishes. So the only difference is this C and this is E. So let's say company A is issuing a bond. Okay. So company A issued a bond. This bond is denominated in foreign currency, and this bond will get converted into, right, this bond will get converted into the shares of company A. Then this is what? This is foreign currency convertible bond. It got converted into the shares of the same company which has issued this bond. But if it gets converted into the shares of company B, so this will become foreign currency exchangeable bond. Does this make sense? Foreign currency convertible bond and foreign currency exchangeable bond. How does this operate? So foreign currency exchangeable bond, so either company A, company B, they are holding subsidiary, or company A already has got shares of company B, and this is how it is being issued. Okay. So this is the structure, FCCB or FCEB. Then you have something called as trade credit beyond 3 years. The trade credit means what? It is the buyer's credit or it is the supplier's credit. Now, what do you mean by buyer credit, supplier credit? I'll just explain it to you in a minute. And then you have the financial lease.
right? Now you see, when we talk about trade credit, so you'll get two things. One is something called as buyer's credit, and the other is called as supplier's credit. Now, what do you mean by buyer credit? So what happens in case of buyer credit? You see, let's say a buyer, he goes to B, who is the seller, and A is the buyer. So he has to, let's say, buy goods worth rupees, let's say 1 lakh dollar. So instead, seller giving him the credit. Normally we get that credit, उधार आपको दे देते, 2-3 महीने बाद पेमेंट कर देना, या अगर आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हो. सो बेसिकली द ट्रेड क्रेडिट कम्स इनटू पिक्चर व्हेन यू परचेज कैपिटल गुड्स, huge plant and machinery. So this is not for the raw materials and all which you buy. This is not a working capital loan. So normally it comes into the picture when you take capital goods. So let's say इसने 1 लाख डॉलर का, ठीक है, या let's say 10 मिलियन डॉलर्स का इसने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया. नाउ दो तरीके से इसको क्रेडिट मिल सकता है. वन इज, लेट्स से the seller is going to give him the credit that okay, pay me after 5 years, or you can pay me in installments over a period of 5 years. Or secondly, the seller may say that don't, I cannot give you the credit, but I have a affiliated bank with me. Let's say this is the bank, I have a affiliated bank with me, the bank is going to give you the loan, the bank gives you the loan, and with that you can make the immediate payment of this. सो ये एक तरीका हो सकता है, इसको हम बोलते हैं बायर्स क्रेडिट, बिकॉज ये क्रेडिट बायर को मिल रहा है फ्रॉम द बैंक. सप्लायर क्रेडिट में क्या हो जाएगा, सप्लायर में बैंक इज नॉट देयर, ए स्ट्रेट अवे buys this machinery on credit from B, who is the seller, and A is the buyer. So when A acquires or purchases on credit from B, तो ये क्या बन जाएगा, सप्लायर क्रेडिट, और ये आपका बन जाएगा बायर क्रेडिट. डज दिस मेक सेंस? So when you take trade credit for more than 3 years, even that is called as the external commercial borrowing. So what are the different forms of ECB? So different forms of ECB in foreign currency is your bonds, which includes your notes and also your debentures, which is not convertible, or which is optionally convertible, or which is partially convertible. Then you have the foreign currency convertible bond, then you have the foreign currency exchangeable bond, then you have the trade credit, and then you have the finance lease. So ये आपके पास आ गए ECB, which is denominated in the foreign currency. Does this make sense? Now we will see also the loans, the traditional bank loan which is there. We have missed one more thing. So the traditional bank loan, वो भी यहाँ पर आ जाएगा. Now when we talk about ECB, which is denominated in the Indian rupee, correct? अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? You will have again the bank loan. You will have the bank loan here. Further अगर आप देखो, so again those securitized instruments, okay? That's again the bond, debentures, notes, or even the preference shares. Then you'll have the trade credit. The trade credit is beyond 3 years. Then you have the finance lease. सर ये सब तो सेम हो गया ना यहीं पर जो लिखा हुआ था, एग्जैक्टली, बट यू हैव समथिंग न्यू हियर विच इज कॉल्ड एज इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड. इंडियन रुपी denominated bond, or this is also called as the masala bond.
The masala bond is also same like what we have studied here, that this bond will be issued, okay, and these bonds can be either privately placed or these bonds can be again listed one. It can be listed on the foreign stock exchange. Okay, so ये आपके पास आया the different forms of ECB. So next that we have covered here is this, the different forms of ECB. Does this make sense? Right? Okay. एक चीज और देखना, ये करेंसी रिस्क में आप चेक करना, you'll get this. आप टाटा मोटर्स का एक्विजिशन देखना, टाटा मोटर्स एंड इवन टाटा स्टील, आप इन दोनों का केस स्टडी चेक करना. I'll share the link also with you, some newspaper articles and all. So what happened, you all know that कोरस स्टील को टाटा ने अक्वायर किया था, टाटा स्टील ने, and even they acquired the Tata Motors, they acquired Jaguar and Land Rover. You all know that? Jaguar and Land Rover. अभी देखो ताज में अगर आप जाते हो तो वहां पर देखता है जैगवार के टैक्सीज होते हैं, राइट? वो क्यों होता है? बिकॉज टाटा मोटर्स ने खरीद लिया उनको. सो दे हैव गॉट, अभी घर की गाड़ी हो गई ना वो जैगवार. एंड सेम वे इफ यू सी टाटा स्टील, सो in case of Tata Steel they acquired Chorus. Now both these companies were European based companies. Okay, so what had happened, they had taken lot of foreign currency loan. अब जब इन्होंने फॉरेन करेंसी लोन लिया था उस टाइम पर यूएस डॉलर, $1 was equal to 45 rupees, right? 45.50 ये रेट था. Now the dollar rate is what? The dollar rate is 70. और लेट्स से जब इनके प्रॉब्लम शुरू हुए उस समय इट वाज 60. नाउ यू सी स्ट्रेट अवे 15 rupees per dollar is the loss. And you can understand, if these are one of the top acquisitions of the world, what could be the size of the loan, right? So 15 rupees per dollar पे नुकसान होने लगा, तो जैसे ही $1 lakh हो गया, it is 15 lakh rupees. जैसे 10 lakh हो गया, 1.5 crores. So understand, apart from the interest which they had to pay, their principal amount also kept on increasing, and that's the reason जो return इनको मिलना था वो return नहीं मिला. They got into this situation. So the deal was not bad, और जो कंपनी था वो खराब नहीं हुआ, प्रॉफिट तो कमाया, बट प्रॉब्लम ये हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि आप उसमें अपने profits को, profits were not sufficient, and this interest cost was not related to the business risk, it was purely related to the currency risk. Okay, so Tata Motors का आप ये दो केस स्टडी चेक करना, and that's how the need, say I'll tell you, every need, you know, every change that comes into the transaction or something, it is all pursuant to a need. Something has happened, now you need something new, and that's the reason you have this Indian rupee denominated loan or something. Same way आप अगर चेक करो कंपनीज एक्ट को, अगर आप थोड़ा सा बैक एंड पे लेकर जाओ, राइट? वी हैव द कंपनीज एक्ट 2013 राइट नाउ. इससे पहले, दिस इज ऑल नॉन एकेडमिक, आई एम टेलिंग यू just for your reference and to get a good understanding. So you have the 2013 Companies Act. Just go back, you'll have the 1956 loan, and the 1956 Act, Companies Act. You go back, you'll have the 1913 Companies Act. Then you'll have the 1884. Then you'll have the 1858 or 1857. Then before that, you'll have again the 1800th century, right? आप अगर ट्रेडिशनली कंपनीज एक्ट को चेक करोगे ना, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनीज दैट हैड बैक स्टार्टेड इन 11th century, but the first text of the companies act you'll get the last one, that is of 1600 century. So earlier the equity shares were not with unlimited liability. Earlier the equity shares were with limited liability. Okay, but आज की डेट में आप देखो equity shares is, you know, with limited liability, they don't have unlimited liability. कभी किसी और लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा, because again we will deviate from ECB, that why the concept of limited liability came into picture. Same way if you see SEBI में ICDR regulations. So in ICDR regulations again, why the concept of promoter contribution got into picture. Why we say that post issue capital 20% has to be
held with promoter? Why there is a lock-in period with the promoter? Why we have SEBI and why don't we have the controller of capital issue, CCI, right? पहले सेबी से पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू था, सो क्यों कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू से हम सेबी पे आए, फिर सेबी के अंदर क्यों धीरे धीरे चेंजेस आए, क्यों आज की डेट में द वे वी हैव द पब्लिक इशू इट इज देयर, व्हाई वी हैव आसबा फैसिलिटी, why don't we have that check wala facility? So everything has got a reason. Events take place and the event realizes that we need something new, and then that's how the change comes into the picture, right? So now moving ahead, the available routes of ACB, sorry, ECB, the routes of ECB, you are going to get, one is what? It is the automatic route and another is the approval route. And when we talk about the approval route, you will require prior RBI approval. You would require prior RBI assent, and here no need of prior approval, provided you comply with the conditions. So whatever conditions are there, उसको अगर आप comply कर रहे हो तो आपको अलग से यहाँ पर अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा. अब कौन कौन ईसीबी यहाँ पर रेज कर सकता है? नाउ फेमा में हम लोगों ने पढ़ा था ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी वन बैंक, याद है? So every foreign exchange transaction takes place through authorized dealer category वन बैंक, करेक्ट? जो भी फॉरेन एक्सचेंज आपको यहाँ पर मिलेगा, एंड under the FEMA Act, RBI gives recognition to the authorized dealer. So यहाँ पर ये authorized dealer के through आप क्या करोगे? You are going to take the loan. So automatic route and approval route यहाँ पर आपका रहेगा. अब कौन से सिचुएशन में आप ऑटोमेटिक रूट लोगे और कौन से सिचुएशन में आप अप्रूवल रूट के अंदर आओगे, कौन से में ऑटोमेटिक रूट में आओगे? दिस आई हैव टू डिस्कस इट विद यू, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट. So there are different limits which have been put in, right? कि आप कौन कौन सा लोन कैसे कैसे रेज करते हो. So some amounts that have been put in here. So depending upon आप किस तरह से यहाँ पे मनी को रेज करते हो, under which route, you'll have to take the approval accordingly, right? Just give me 1 minute. Sorry. सो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट, सो अलग अलग पर्पस के लिए यहाँ पर आपको बताया हुआ है. सो फॉर डिफरेंट पर्पसेस यू विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लिमिट्स, राइट? जैसे अगर आप चेक करो, if you are taking a trade credit, okay, so in case of trade credit up to 150 million dollars, right, they have exemption if it's a oil and gas refinery or airline marketing shipping companies. But if it is up to 50 million for other than import, import of oil gas refinery item and airline and shipping company, then again in that case again you have the limit is $50 million. So for different amounts or different types of loans, you will have different kinds of uh, reporting require the different types of limits which will be there on the ECB. Okay, does this make sense, right? So आप इतना ध्यान रखना, approval route के अंदर you'll have to take prior RBI approval, and in case of automatic route you don't need the prior RBI approval provided you comply with the conditions. You comply with the conditions and the loan has been already given to you, right? Now let's see who are the eligible borrowers.
or rather before that, let's cover the minimum maturity period, the minimum average maturity period. So let's see this. So when we talk about this, now if it's, let's say, there are different different minimum maturity period which has been given for there. So normally if you see, the minimum average maturity period is what it is, usually 3 years, right? Which is for the manufacturing companies. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि अगर आप एग्जाम में आप अगर भूल जाओ तो ठीक है, देर इज स्टिल फाइन, ये आपके लिए इजी रहेगा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट? दिस इज यूजुअली इट इज व्हाट इट इज 3 years. बट अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को चेक करोगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच अवेल्स अप टू $50 million, इन दैट केस इनका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी हो जाता है 1 year का। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए अगर आप लोन लेते हो तो ये आपके लिए 5 years का हो जाएगा। सो इफ इट्स अ, so usually it is 3 years, but for manufacturing company it is this. Then let's say if it is general corporate purpose loan which you have taken from the equity shareholders, so here it can go for 5 years. Now general corporate purpose means this is a working capital loan which you have taken, right? Then let's say if it's a working capital loan and इसमें lender कौन है, let's say NBFC. NBFC is the lender. So in that case, again, the maturity period can go up to 10 years. So usually, if you see, it is 1 year, but otherwise it is 1 year. Usually it is what it is 3 years, but depending upon you are taking loan from whom and for what purpose, the minimum average maturity period can even increase or decrease. So आपको ये 3 years याद रखना है, ठीक है? Now let's see who are the eligible borrowers. जो आपको लोन दे सकते हैं। सो एलिजिबल बोरोवर्स में अगर आप देखो, सो बेसिकली ऑल द एंटिटीज विच कैन रिसीव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ पर एलिजिबल बोरोवर्स है, ठीक है? सो ऑल एंटिटीज that are eligible to receive foreign direct investment, they are the eligible borrowers here. फर्दर अगर आप इसमें देखो तो आपके पास यहाँ पे कौन कौन आ जाते हैं, आपके पोर्ट ट्रस्ट्स, देन फर्दर अगर आप देखो यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वी हैव नॉट डन एसीजेड। एसीजेड चैप्टर जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एसीजेड को आप ऐसे मानो इन द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ठीक है? विद इन इंडिया हम किसी एरिया को क्या कर देते हैं, विद इन इंडिया विल जस्ट डिमार्क सम अ पर्टिकुलर एरिया एंड वी विल से this is a SEZ. So once we demark a particular area as a special economic zone, then lot of tax benefits we get it there, because we technically we presume for tax purpose we presume that that is what that is a for that is a foreign territory. So let's say मुंबई में अगर आपने बीकेसी को एसीजेड बना दिया, दिस मीन्स व्हाट, अभी पूरा जो बीकेसी है, सो बीकेसी में अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज को अगर बेचोगे या आप सर्विसेज दोगे, सो दैट विल बी टर्म्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एंड अगर आप बीकेसी से कुछ सामान को परचेज करोगे और इफ यू विल अवेल एनी सर्विसेज, दैट विल बी कॉल्ड एज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ओके, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बीकेसी में अगर एक बैंक का ब्रांच है, लेट्स से एसबीआई का एक ब्रांच है, तो आप उसको बोलोगे ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। व्हाई? बिकॉज दिस इज देयर इन द एसीजेड एंड फॉर टैक्सेशन पर्पस, ड्यूटी पर्पस, एसीजेड विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन टेरिटरी। एंड इनकम टैक्स में बेनिफिट के अलावा you will also get benefit in terms of the import and
export duties. So a lot of relaxations would be given to the SEZ. फर्दर अगर आप यहां पर देखोगे सिडबी, so that's the eligible borrower here. Then even the Exim Bank, Export Import Bank, Exim Bank is also one of the eligible borrower. Then even the registered entity in the microfinance, we have done NBFC, याद है आपको microfinance, right? So यहाँ पर वो आ जाएगा. And even your registered not for profit, जो NGOs आपके होते हैं, not for profit companies, so registered section 8 company, इवन वो भी यहाँ पर इसको अवेल कर सकते हैं. देन इवन योर रजिस्टर्ड ट्रस्ट, बट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, इट शुड बी रजिस्टर्ड. ओके, सो योर रजिस्टर्ड सोसाइटीज, देन द रजिस्टर्ड ट्रस्ट, करेक्ट, कोऑपरेटिव, ये लोग अवेल कर सकते हैं. बट यहाँ पर क्या है, ये लोग अवेल कर पाएंगे ओनली इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी. इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी सिर्फ ये यही रेस कर पाएंगे यहाँ पे. ओके, सो ये आपके पास आ जाता है the eligible borrowers. Now let us understand who are the recognized or the eligible lenders. So देखो, recognized lenders अगर आप बोलोगे, so it can be any person, but only thing is what, that the lender should be a resident of a FATF or ISO compliant country. Have you heard of FATF? अभी recently news में है. You all know पाकिस्तान has admitted कि दाऊद उनकी टेरिटरी में है. राइट, क्यों किया उन्होंने ऐसा? दाऊद से काम निकल गया उनका, काम खत्म, आदमी खत्म. बिकॉज दे वांट टू escape from the FATF sanction, Financial Action Task Force. FATF stands for Financial Action Task Force. सो 7 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था, राइट right? और बेसिकली दिस इज टू प्रिवेंट द टेरर फाइनेंसिंग. अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करोगे, टेरर फाइनेंसिंग से मतलब है यहाँ पर अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करोगे तो आपको रोका जाएगा, सैंक्शंस लग जाएंगे आपके ऊपर. और टेरर फाइनेंसिंग का सिंपल मतलब यही होता है, यू नो, इट्स अ वेरी वेग टर्म, टेरर फाइनेंसिंग. अल्टीमेटली दे मीन इज द मनी लॉन्ड्रिंग. सो अगर अनफेयर मीन से आपके पास पैसा आ रहा है, ड्रग्स और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज और इन सब में लग रहा है, तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे. राइट नाउ देयर आर 2 कंट्रीज व्हिच आर इन द ब्लैक लिस्ट. वन इज नॉर्थ कोरिया, another is Iran. Pakistan, inshallah, will become the third country to get into the blacklist. अभी वो ग्रे लिस्ट में है, वो ब्लैक लिस्ट में घुस गए ना, इसकी वजह से उनको कितना नुकसान हो रहा है हर साल, जो ग्रे लिस्ट में अगर है. सो दे आर हैविंग ऑलमोस्ट अ लॉस ऑफ $10 billion every year. For a country like Pakistan, $10 billion is a huge amount. But अगर इनको ब्लैकलिस्ट में डाल दिया, देन यू अंडरस्टैंड पाकिस्तान इज फिनिश्ड इकोनॉमिकली. पाकिस्तान विल बी फिनिश्ड बिकॉज इन दैट केस पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे. पाकिस्तान इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनका सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाएगा. इनको कोई भी कंट्री लोन नहीं देगा, कोई भी फॉरेन कंट्री लोन नहीं देगा. इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक और इवन योर एशियन डेवलपमेंट बैंक, देन योर IMF, ये सब इनको लोन देने से मना कर देंगे. So this is going to be the
मेजर लॉस फॉर द कंट्री अगर इस टाइप का सैंक्शंस लग जाता है। यू ऑल हैव सीन ईरान का क्या हालत हो गया, करेक्ट। नॉर्थ कोरिया का क्या हालत है। रिसेंट अभी न्यूज आया था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में फूड के शॉर्टेजेस हो रहे हैं। जो किंग जोंग वुंग है उसने क्या बोला है, कंसिडर योर पेट एज द फूड ऑल्सो। एक बार आप सोचो कि वो आपको पेट को घर में पालना है कि नहीं पालना है, कि खुद के पेट को पालना है। सो इवन किल योर डॉग्स एंड एनिमल्स और अपना खाना ले लो। दिस इज बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस व्हिच हैव बीन पुट देयर। तो वो इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, राइट। तो दैट्स द इशू। सो इफ यू आर अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विच इज FATF compliant, ध्यान रखना FATF compliant कंट्री, FATF compliant कंट्री, जहां पर FATF के हिसाब से आपके पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स अवेलेबल है, तो आप उनके साथ यहाँ पे या उनसे आप यहाँ पे ECB रेज कर सकते हो। और द पर्सन is the resident of an ISCO compliant country. Do you know what is ISCO? International Organization of Securities Commission. राइट। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन आप कैसे मान लो, जैसे आप चेक करो, इंडिया में सेबी है, ठीक है। सेबी मेंबर बन जाता है किसका, सेबी मेंबर बन जाते, जैसे आपके पास यूनाइटेड नेशंस हो गया, सेंट्रली यूनाइटेड नेशंस आपके पास जैसे हो गए, बिल्कुल वैसे ही आपके पास यहाँ पे आईएसको हो गया, जो वर्ल्ड के सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर्स जो होते हैं उनका हेड हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास आईएसको कंप्लायंट कंट्री, सो या तो आपके पास क्या हो, एफएटीएफ कंप्लायंट कंट्री हो, या फिर आप आईएसको कंप्लायंट कंट्री हो, इन दोनों में से आपके पास एक रहना चाहिए। फर्दर यहाँ पर यह बताया है कि जिस कंट्री में या जिसके भी साथ भी आप लोन रेस कर रहे हो, उस कंट्री के साथ इंडिया का क्या होना चाहिए, मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहां पर इंडिया एज अ मेंबर कंट्री, ठीक है। और इवन टू द इंडिविजुअल्स, आप इंडिविजुअल्स से भी ECB रेस कर सकते हो, राइट। एंड दिस विल बी इफ दे आर द बॉन्ड होल्डर्स, if they are the bond holders they can do that, and these bonds are listed abroad, right. So either you can raise it from your bond holders which are listed, you can raise money by way of bond which is listed abroad, or you can raise money from your इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो फॉरेन में आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके साथ आप यहाँ पे रेस कर सकते हो, या फिर आप लोन ले सकते हो किसके साथ, फॉरेन ब्रांचेस ऑफ द इंडियन बैंक्स। ठीक है, बट ये आप जो लोन है ये कैसे रेस करोगे, दिस विल बी ओनली फॉर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, ठीक है। आप इसके लिए यहाँ पर पैसों को रेज कर लोगे, राइट। सो ये आपके पास आ जाता है हु आर द रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। एक और क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में काफी बार देखने को मिलेगा, दैट विल बी द एंड यूज, एंड यूज ऑफ दीज बॉन्ड्स, कि ये बॉन्ड्स आप कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। सो एंड यूज में इट्स अ वेरी इजी थिंग, एंड यूज में इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर,
सो फिर ये इंपॉर्टेंट कैसे है? बिकॉज यहाँ पर एक लिस्ट आ जाता है एक्सेप्ट का. सो देर इज अ नेगेटिव लिस्ट दैट फॉर दिस पर्पस यू कैन नॉट यूज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग. और एक्सेप्शन में क्या क्या है? एक्सेप्शन में है दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रियल एस्टेट एक्टिविटीज. आप फॉरेन से पैसा रेज करके इंडिया में रियल एस्टेट एक्टिविटीज नहीं कर सकते, या फिर फार्म हाउसेस के कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर सकते. दिस इज नॉट अलाउड. देन नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे चेक करो, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट. आप कैपिटल मार्केट के अंदर रेस नहीं कर सकते. यू कैन नॉट इवन ट्रेड इन डेरिवेटिव्स एंड ऑल, और स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स में. देन यू कैन नॉट डू इक्विटी इन्वेस्टमेंट. बोरोइंग लेकर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, विच इज प्राइमरीली अनलिस्टेड कंपनीज, और में आप नहीं लगा सकते. देन आपने अगर ईसीबी रेस किया है, यू कैन नॉट यूज इट फॉर वर्किंग कैपिटल. सर क्या मजाक कर रहे हो, अभी तो हमने देखा था वर्किंग कैपिटल लोन. सो दिस इज एक्सेप्ट इफ यू हैव रेज्ड इट फ्रॉम द फॉरेन इक्विटी होल्डर. except if raised from foreign equity holder. कोई आपका फॉरेन इक्विटी शेयर होल्डर है, उससे अगर आप रेज करते हो तो आप वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हो. देन इवन योर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस लोन, ये अगर आप लेते हो तो अगेन यू कैन यूज इट only if it is raised from the foreign equity holder. And then you have for the repayment of Indian rupee loan. So you cannot use that except if it is raised from the foreign equity shareholder. Okay, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फॉरेन इक्विटी शेयर होल्डर से आपने रेज किया तो आप ये वर्किंग कैपिटल, जनरल पर्पस कॉर्पोरेट लोन एंड फॉरेन इंडियन रुपी लोन को रीपे करने के लिए आप ले सकते हो, बट अदरवाइज नॉट. सो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. वर्किंग कैपिटल लोन, rather I'll make it this way: external commercial borrowing for working capital for working capital loan, okay, or for general corporate purpose, or for the repayment of a Indian rupee loan is not allowed, and is allowed. It will be allowed if who is the lender? If lender is a foreign equity holder, and from others it is not allowed. Does this make sense? End use का point number D E F. Okay, इसके लिए refer the chart PTO. D E and F. So ये 3 points आपके आ गए. Then ECB cannot be used for agriculture and plantation activity. आपको पता होगा foreign direct investment, though we have not studied the FDI chapter, once we do you'll get a better idea of this, that FDI is not allowed in the agriculture sector. Now we'll discuss some other day when we do FDI that क्या reason है कि agriculture sector के अंदर foreign direct investments को allow नहीं किया. Then you cannot use the money in the chit fund or in a nidhi company. You all understand nidhi company, chit fund? म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आप एक फंड इकट्ठा करते हो, राइट? सो यहां पर आ जाता है
then you cannot used in for trading in transferable development rights, right? You cannot use it, and also you cannot use on lending to the entities which are in above activities. So सपोज कोई कंपनी है जो एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटी में है, उनको आप लोन नहीं दे सकते, वो ईसीबी रेज नहीं कर सकते, वो ये भी नहीं बोल सकते वी विल यूज इट फॉर सम अदर पर्पस, बिकॉज अगेन एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटी में आप इसको यूज कर रहे हो, सो यू विल नॉट बी अलाउड, राइट? सो ईसीबी के अंदर हमने अभी यहाँ पर फिनिश किया एलिजिबल बोरोवर्स, हमने टेन्योर को चेक किया, हमने लेंडर्स को चेक किया, हमने पर्पस एंड यूज को देखा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड this part. All in ceiling cost, then we do parking reporting, and then we do this conversion of ECB into equity. So let's see the all in ceiling cost. या ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो. सी यहां पर क्या रहता है, अगर मैं आपको बताऊं, ऑल इन सीलिंग कॉस्ट में अगर आप देखोगे तो इसका क्या मतलब हो जाता है दैट जब भी आप ईसीबी को रेज करोगे तो ईसीबी में आप इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट के अलावा आपके कुछ अदर एक्सपेंसेस भी होंगे, राइट? व्हाट ऑल दीज अदर एक्सपेंसेस कुड बी, आप ये देखो, अदर एक्सपेंसेस में ये सब आ सकता है. लेट्स से यू आर पेइंग कमीशन, करेक्ट? आप हो सकता है यहां पर कुछ प्रोसेसिंग फीस पे करो, करेक्ट? हो सकता है आप कोई और यहां पर एक्सपेंसेस को इनकर करो, करेक्ट? वट एवर ड्यूटीज वगैरह को आप पे करो, कुछ भी हो. सो एनी अदर एक्सपेंसेस अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, इसके ऊपर एक कैप लगा दिया, और वो कैप कितना है 450 बेसिस पॉइंट्स, जिसको हम क्या बोलेंगे 4.5%, करेक्ट? ऑल इन सीलिंग कॉस्ट अगर आप देखोगे इट इज व्हाट, इट इज 450 बेसिस पॉइंट्स, जिसको हम बिप्स बोलते हैं. सो 450 बेसिस पॉइंट्स मींस इट इज 4.5%. व्हाई? बिकॉज 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 1%, करेक्ट? तो ये आपके पास यहां पर रहेगा. तो ये आपको मेंटेन करके रखना है व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑल इन सीलिंग कॉस्ट, कि इससे ज्यादा आपका एक्सपेंसेस यहां पर नहीं हो सकता, राइट? और अगर आप यहां पे प्री पेमेंट करते हो, आपको पता होगा अगर आप प्री पेमेंट करते हो तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ता है. डू यू नो दैट? प्री पेमेंट ऑफ द लोन और द प्री पेमेंट चार्जेस, आपको पता है ये वाला प्री पेमेंट चार्जेस या फिर प्री पेमेंट के पीनल इंटरेस्ट अगर आपको पे करना है, आपने सपोज करो 10 साल का लोन लिया, उसको 6 साल बाद ही आप रीपे करना चाहते हो, तो बैंक आपसे पीनल इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि भाई बैंक को तो 10 साल का इनकम होने वाला था ना, बैंक तो उस हिसाब से पूरा प्रोजेक्शन करके बैठा हुआ था. जब आप उसको 6 साल में रीपे कर रहे हो तो बैंक को कुछ नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए वो बैंक आपसे लेगा. सो दिस कैन नॉट बी मोर देन मैक्सिमम, दिस कैन बी 2%, इससे ज्यादा इट इज नॉट अलाउड. 2% से ज्यादा इट इज नॉट अलाउड. तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, दैट ये जो आपका अमाउंट है ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट, दो ये आपका अलग अलग यहाँ पर वैसे लिमिट्स रहते हैं, बट अगर आप एक तरह से यहाँ पर चेक करो, इसमें एक इंडिविजुअल लिमिट आ जाता है, और यहाँ पर वो इंडिविजुअल लिमिट होता है दैट अप टू US डॉलर
750 million पर फाइनेंशियल ईयर। आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट में ऑटोमेटिक अलाउ किया हुआ है, देर इज नो प्रॉब्लम, सो दिस इज ऑल अंडर द ऑटोमेटिक रूट। इसके अलावा अगर आप देखो, इफ देर इज अ स्टार्टअप, आप स्टार्टअप समझते हो, इफ देर इज अ स्टार्टअप और वो यहाँ पर अप टू $3 million पर फाइनेंशियल ईयर को अगर रेज करता है इन फॉरेन करेंसी, कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी या फिर इंडियन रुपी और फॉर बोथ, तो उनको यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट में अलाउ किया हुआ है। दिस इज अंडर द ऑटोमेटिक रूट, दिस इज अलाउड। सो ये कि आपको एक ब्लैंकेट अप्रूवल मिला हुआ है। अदरवाइज आई टेल यू, ऑटोमेटिक रूट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग लिमिट वहां पर बनाए हुए हैं कि इससे ज्यादा आप अमाउंट अगर आप रेज करोगे तो विल हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन फर्दर अगर हम यहाँ पर आगे और चेक करें तो देखो, लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, कन्वर्जन, राइट। कन्वर्जन भी नहीं, पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं, विल अंडरस्टैंड दिस पार्किंग ऑफ ईसीबी, parking of ECB. Now, what do you mean by parking of ECB? So you have taken the loan. So the loan is disbursed, right? Now, this loan until deployment, to the project, आपने जहां पर भी लोन लिया या मैंने जिस पर्पस के लिए भी आपने लोन लिया कि इस बिजनेस में हमें पैसा लगाना है, यहाँ पर इसको लगाना है, until the loan is disbursed और until the loan is deployed to the project, आप यहाँ पर क्या करते हो, the loan is kept in an account, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्किंग ऑफ ईसीबी। इसको आप स्ट्रेट अवे बोल दो पार्किंग ऑफ ईसीबी, ठीक है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर बात कर सकते हो, राइट, दिस इज क्लियर। अब ये पार्किंग ऑफ ईसीबी में रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। अब ये पार्किंग ऑफ ईसीबी में क्या रिस्ट्रिक्शंस है, आप ये देखो, अगर आपने ईसीबी को रेस किया इन अब्रॉड, ठीक है, सो ईसीबी रेस्ड अब्रॉड, और बेसिकली अब्रॉड तो होगा बट ईसीबी जो रेज आपने किया, इट इज टू बी पार्क्ड इन फॉरेन। तो आप कब पार्किंग कर सकते हो, ये तभी कर सकते हो इफ ईसीबी इज रेज्ड फॉर फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर, राइट। आपने सपोज करो लोन लिया जापान से और आपको पेमेंट भी किधर करना है, जापान में ही पेमेंट करना है। नाउ इन दैट केस आप यहां पर एक चीज चेक करो, क्लासिक एग्जांपल आई कैन गिव यू, लेट्स से आपको जो लोन का डिसबर्समेंट करना है या जो पेमेंट करना है, दैट इज टू बी नॉट इवन लोन, मैं क्या बोल रहा था, गिव मी 1 मिनट। या सो आपने सपोज करो लोन जो अवेल कर लिया, वो आपको लोन मिल गया इन लेट्स से जून 2019। नाउ जब आपको लोन को, दिस इज द लोन विच हैज बीन डिसबर्स्ड बट द एक्चुअल आउटफ्लो विल बी लेट्स से इन द मंथ ऑफ सितंबर 2019, राइट। अब आप देखो जून से लेके सितंबर तक आप क्या कर सकते हो, इसको आप पार्क करके रखोगे, करेक्ट, यही तो हो गया ना पार्किंग। अब आप इसको पार्क करके रखोगे। नाउ ये सितंबर में जो आपको डिसबर्समेंट करना है या जो पेमेंट करना है, दिस हैज टू बी डन लेट्स से इन यूएस,
आपने लोन भी कहां पर लिया था, यूएस में या अब्रॉड में आपने लोन लिया, और आपको पेमेंट भी किस में करना है, आपको यूएस, मतलब यूएस में पेमेंट करना है। सो व्हाट इज द यूज कि आप देखो यूएस से पहले लोन को लो, मैंने जो डॉलर है उसको आप इंडिया में लेकर आओ, और फिर वापस से आप इसको यूएस में लेकर जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन? आर यू अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन यहाँ पे, कि आप क्या कर रहे हो, आपने जुलाई में, लेट्स से इन द मंथ ऑफ जून, सी, टेक इट दिस वे, इन द मंथ ऑफ जून यू गॉट डॉलर्स, ठीक है। फिर गवर्नमेंट आपको बोलता है कि देखो आपने अगर उसको फॉरेन करेंसी लोन को, ईसीबी को आपने यूज नहीं किया है तो उसको इंडिया में लेकर आ जाओ। तो आप जून में इसको फिर इंडिया में लेकर आते हो, तो इसको आपने रुपये में कन्वर्ट कर दिया। फिर सितंबर में आके आप वापस से इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हो। सो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन यू विल कन्वर्ट दिस डॉलर इनटू रुपी, इसमें कन्वर्जन चार्जेस लगेगा, और फिर इस रुपी को जब आप डॉलर्स में लगाओगे फिर कन्वर्जन चार्ज लगेगा, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, दैट अगर आपने ईसीबी रेस किया है इन द मंथ ऑफ जून, which is to be used in some other, sometime later in future, and the expenses will be again in foreign currency, you can keep that ECB parked in foreign only, आपको इंडिया में लेकर आने का जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो टिल डिप्लॉयमेंट। अच्छा एक चीज और है, आप मुझे एक बात बताओ, इस केस में आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स कब से शुरू हो जाएगा, विल इट स्टार्ट फ्रॉम जून और विल इट स्टार्ट फ्रॉम सितंबर? विल इट स्टार्ट फ्रॉम जून और विल इट स्टार्ट फ्रॉम सितंबर? सेप अयो, फोरम सितंबर? नहीं, देखो आप मेरे को, ये लोन मुझे आपने दिया, ठीक है, ये लोन मेरे को आपने दे दिया, मैं उसको सितंबर से यूज करना शुरू करूंगा। तो आपने तो लोन मेरे को जून में ही दे दिया ना, तो यू विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम जून इटसेल्फ, ठीक है। करेक्ट, मानव हित, आप दोनों ने करेक्ट बताया। सो आप यहाँ पे चेक करो, मेरे को तो जून से लेट्स प्रिज्यूम 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, बट मैंने तो इसको पार्क करके रखा है। अब पार्क कहाँ करके रखा हुआ है, मतलब अकाउंट में रखा हुआ है, ठीक है, उसमें तो मेरे को कुछ ज्यादा इंटरेस्ट मिल नहीं रहा। सो क्या मैं गवर्नमेंट से यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट, वो बोलते हैं ना मारवाड़ी गुजराती दिमाग, कहीं ना कहीं से तो रिटर्न निकालो। तो हम यहाँ पर दिमाग लगा रहे, मैं गवर्नमेंट को जाके बोलता हूँ, गवर्नमेंट मैंने ये 4-5 महीने के लिए ईसीबी को फॉरेन में पार्क करके रखा हुआ है, जिस पर कुछ रिटर्न मेरे को नहीं मिल रहा, या बहुत ही मिनिस्किल 1% रिटर्न मिल रहा है। आप देखो मेरा ओवरऑल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 9%। अभी से आप देखो ना, धंधा तो चल नहीं रहा है, ठीक है, धंधा तो सितंबर से चलेगा। अब बताओ 4-5 महीने पर मेरे को फालतू में 9% का ब्याज देना होगा। कैन यू please give some exemptions so that I can invest this money which is parked in foreign in some short term securities where I can get some, लेट्स से, इंटरेस्ट। सो वन नहीं, लेट्स से 5-6% का इंटरेस्ट मिल जाए। तो आप मुझे एक बात बताओ, इफेक्टिवली फिर आप कितना, आपको कॉस्ट पड़ा खाली 4 ना, तो आप देखो 5% का तो कॉस्ट बच गया आपको, और आपका कॉस्ट बच गया, पैसे का नहीं जाना इज इक्वल टू पैसे का आना, तो मेरे लिए तो रिटर्न हो गया। सो दिस ईसीबी विच इज बिंग parked in foreign, which is going to be used in future for foreign currency. If ECB is raised for foreign currency expenditure, in that case you can also put it in some liquid assets। आप इसको लिक्विड एसेट्स में लगा सकते हो, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। बट ये एक और चीज आपको ध्यान रखना होगा, दैट इट शुड नॉट बी रैंक्ड बिलो AA नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा आप इसको और कहां पर इन्वेस्ट करके रख सकते हो, यू कैन इन्वेस्ट इन द ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स रहते हैं, बोरोइंग्स गवर्नमेंट का, ट्रेजरी बिल्स में आप कर सकते हो, या फिर आप इसको डिपॉजिट कर सकते हो इन द ओवरसीज ब्रांच ऑफ द इंडियन बैंक, ओवरसीज ब्रांच ऑफ द इंडियन बैंक। तो आप इसको अब्रॉड में पार्क करके रख सकते हो। सेम वे यू कैन ऑल्सो पार्क द ईसीबी डोमेस्टिकली, और रेदर ये जो ईसीबी है ये आपको डोमेस्टिकली ही पार्क करना पड़ेगा। अगर आपका जो एक्सपेंस है दैट इज नॉट इन फॉरेन करेंसी, इफ इट इज द रुपी एक्सपेंडिचर, सो इफ इट इज फॉर रुपी एक्सपेंडिचर, तो आपको इसको इंडिया में लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। और इंडिया में लाने के बाद में यू हैव टू कीप इट
विद अ बैंक अकाउंट, ओके, सो ये आप इंडिया में लेकर आओगे. सो इन दैट केस दिस मनी विल बी क्रेडिटेड टू द rupee account with AD category 1 बैंक. उसके पास आप यहाँ पे रख दोगे. और अगेन यू आर ऑल्सो अलाउड टू पुट इट इन द टर्म डिपॉजिट, बट अगेन इसका आपका ओवरऑल जो मैक्सिमम पीरियड है, दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर मैक्सिमम 12 मंथ्स, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते. तो ये आपके पास एक पूरा ईसीबी कहा जाता है, पार्किंग ऑफ ईसीबी. तो इट्स वेरी सिंपल. आपने ईसीबी रेज किया और ये ईसीबी आप पार्क करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको पार्क कर सकते हो इन फॉरेन, और आप इसको पार्क कर सकते हो इन इंडिया. You can park it in foreign if it is for a foreign currency expenditure. You can park it in India if it is a rupee expenditure. Does this make sense? Guys, does this make sense? तो ये आपका parking of ECB part आ गया. Okay? This is clear? Next आप यहाँ पे देख लो, तो आपके पास कुछ रिपोर्टिंग है. हम रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लेते हैं. तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अगर आप देखोगे आपके ECB के लिए, तो आप ये देखो, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में आपके पास क्या आएगा. तो सबसे पहले तो जो भी यहाँ पर बोरोवर है उसको क्या लेना पड़ेगा, उसको LRN नंबर लेना पड़ेगा. व्हाट इज LRN? दिस इज लोन रजिस्ट्रेशन नंबर. तो आपको लोन रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लेना पड़ेगा ना. ऑब्वियसली ये कौन आपको देगा? आरबीआई आपको देगा, ठीक है. इसके अलावा so this is to be obtained by the borrower. और कौन देगा? आरबीआई. ये आपके पास होना चाहिए. इसके अलावा अगर आप देखो, जब भी आप ईसीबी में कोई चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, दैट नीड्स टू बी रिपोर्टेड within 7 days from the change which gets affected, right? So any changes in the terms of ECB, this needs to be reported within 7 days. अगेन किसको? आरबीआई को. इसके अलावा बोरोवर को यहां पर क्या करना पड़ेगा? दे विल ऑल्सो हैव टू रिपोर्ट द एक्चुअल ट्रांजैक्शन टू आरबीआई. और ये आरबीआई को उनको कब बताना पड़ेगा? सो देखो, ये बेसिकली आपका जाता है ऑन मंथली बेसिस, राइट, एंड दिस गोज इन फॉर्म ECB 2, राइट. और ये भी किस में जाएगा? विद इन 7 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ मंथ. आपका महीना कंप्लीट होता है उसके 7 days के अंदर. फिर आप देखो, अगर आपने डिले रिपोर्टिंग किया तो अगर आपको यहाँ पर क्या रहेगा? पेनल्टी वगैरह चार्ज हो जाएगा, ठीक है. फर्दर अगर आप देखोगे यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ ECB इनटू इक्विटी, ये आपका लास्ट टॉपिक हो जाएगा. कन्वर्जन ऑफ ECB इनटू इक्विटी, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो अगेन आपको ये ध्यान रखना है कि ECB को आप इक्विटी में तभी कन्वर्ट कर पाओगे और ओनली फॉर दो सेक्टर्स वेयर FDI इज अलाउड, राइट. ओनली फॉर those sectors where FDI is allowed, right. अब चाहे वो ऑटोमेटिक रूट, अब एफडीआई जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर और डिटेल में कवर हो जाएगा. एफडीआई जब आप रेज करते हो तो आप दो तरीके से रेज कर सकते हो. वन इज अंडर द ऑटोमेटिक रूट, अनदर इज अंडर द अप्रूवल रूट. तो आप ऑटोमेटिक रूट है तो आप ऑटोमेटिक रूट में आप स्ट्रेट अवे आ सकते हो. अप्रूवल है तो फिर आपको विद प्रायर परमिशन, विद प्रायर परमिशन आप यहां पर
लोन लेके आ जाओ, सो एज पर द एफडीआई पॉलिसी। इसके अलावा दिस इज योर पॉइंट नंबर वन। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कन्वर्शन दे रहे हो, राइट, सो दिस शुड बी विद द लेंडर्स कंसेंट। आप अपने लोन को, कई बार होता है ना, आप अपने आपने लोन ले लिया, वो लोन को रिपे नहीं कर पाते हो, आप तो लोन को कन्वर्ट कर देते हो इक्विटी में। तो अगेन आपको यहाँ पर विद द लेंडर्स कंसेंट, प्लस यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया तो मुझे 10% ज्यादा प्रीमियम दो, 20% ज्यादा प्रीमियम दो। सो दिस इज विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एफडीआई जब आपको अलाउ किया जाता है तो कुछ सेक्टर्स के अंदर आपको कैप लगा हुआ रहता है, सो दिस शुड बी विद इन द सेक्टोरल कैप। अभी देखो सेक्टोरल कैप का क्या मतलब होता है। सेक्टोरल कैप मींस दैट मैक्सिमम एफडीआई किसी सेक्टर में कितना आ सकता है। जैसे अगर आप बैंक्स में चेक करो तो बैंक्स में 75% एफडीआई आ सकता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 74% है, यस 74% बैंक। तो अब अगर सपोज करो ऑलरेडी 70% एफडीआई आपके पास आया हुआ है, तो आपके पास कितना रूम बचा, द ओनली रूम इज फॉर 4%। सो 4% से ज्यादा फिर आप एफडीआई नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से कि कन्वर्ट करके मैं पूरा यहाँ पर इक्विटी को लेकर आ जाऊं। सो ऑलरेडी इफ देयर इज a maximum limit which has been breached or which is partially covered, then only for the balance part you can issue convert the ECB into equity। देन अगर आप यहां पर देखो तो आपके पास आ जाएगा फॉर्म एफ सी जी पी आर। Now I'll tell you ये फॉर्म एफ सी जी पी आर क्या होता है। दिस इज अ फॉर्म विच इज टू बी issued by a Indian issuer company whenever shares are issued to a non resident shareholder। ठीक है, नॉन रेसिडेंट पर्सन और पीआरओआई को जब भी आप शेयर्स इशू करोगे, सो फॉर्म एफ सी जी पी आर जो होगा, राइट, दिस नीड्स टू बी रिपोर्टेड टू आरबीआई अबाउट द इशू ऑफ शेयर्स। ये आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा, ओके। और इसके अलावा अब ऑब्वियस सा बात है, आप एक चीज देखो, लोन तो आपका किस में है, फॉरेन करेंसी में, इफ इट इज इन द फॉरेन करेंसी लोन। अच्छा, आपका जो शेयर्स है, शेयर्स का वैल्यू किस में है, शेयर्स आर वैल्यूड इन इंडियन रुपीस। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, लोन इज इन द फॉरेन करेंसी, द शेयर्स आर वैल्यूड इन द इंडियन रुपीस। अब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो स्टेप कैसे रहेगा, स्टेप वन विल बी दैट you will have to convert the loan into Indian rupee। Yes or no? Once you have to convert the loan into Indian rupee, तो एक बार आपके पास आ गया the total borrowings in the Indian rupee, करेक्ट। फिर स्टेप थ्री आप क्या करोगे, you will get the valuation of the shares done, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आ जाएगा। तो स्टेप फोर में आपको पता चलेगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको इशू करने हैं, विच विल बी व्हाट, इट विल बी स्टेप टू डिवाइडेड बाय स्टेप थ्री। ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूं कैसे। सो सपोज द लोन इज ऑफ $1 लाख, ठीक है। तो सबसे पहले इस $1 लाख को मेरे को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इंडियन रुपीज में मैं कन्वर्ट करूंगा तो आई विल अप्लाई द एक्सचेंज रेट। एंड एक्सचेंज रेट कितना है, 1 US डॉलर इज इक्वल टू लेट्स से 70 रुपीज। सो ये आ गया 70 लाख रुपीज, करेक्ट। अब मेरे को पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, तो मैंने शेयर का वैल्यूएशन करवाया, शेयर का फेस वैल्यू आ रहा है 10 रुपीज, प्लस देयर इज अ सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ लेट्स से 25 रुपीज। तो ये आपका शेयर का टोटल वैल्यू आ गया 35 रुपीज, करेक्ट। नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स यू आर गोइंग टू इशू, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, आप यू विल से 70 लाख रुपीज divided by 35 rupees per share. So we are going to issue total 2 lakh shares. Does this make sense? Guys, does this make sense? ये वाला। अब जो पूरा मुद्दे का टॉपिक है
वो ये है दैट ये एक्सचेंज रेट आप कौन सा लगाओगे। एक तो ध्यान रखना, ये जो 2 लाख शेयर्स आप इशू कर रहे हो, दिस शुड बी विद इन दी एफडीआई लिमिट्स, जो भी अभी हमने डिस्कस किया था ना, दिस शुड बी विद इन द एफडीआई लिमिट्स। अब पूरा मुद्दे का टॉपिक हो रहा है कि ये एक्सचेंज रेट कौन सा रहेगा। तो ये एक्सचेंज रेट के लिए वो ये बता रहा है विच विल बी प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। ओके, द एक्सचेंज रेट, यहां पर ध्यान रखो, मैं इधर लिख देता हूं इसको कनेक्ट करके। सो दिस इज पॉइंट नंबर ई ओनली, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं दैट द एक्सचेंज रेट will be the rate as on the date of agreement। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आप लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करने वाले हो, उस दिन का जो आपका एक्सचेंज रेट रहेगा वो आपके पास यहां पर आएगा। आप बताओ, दिस इज क्लियर। अच्छा, ये वैल्यूएशन जो रहेगा, दिस विल बी द फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू कौन करके देगा आपको, ये कोई आपको मर्चेंट बैंकर या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो पिछले 10 साल से प्रैक्टिस में है, एक्सपर्ट ऑफ वैल्यूएशंस वो, एंड वेरी सून रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। आपने कंपनीज एक्ट में सेक्शन 247 पढ़ा होगा। सो एज ऑफ नाउ वैल्यूअर्स जो रहेगा वो खाली कंपनीज एक्ट के लिए है, बट वेरी सून यू आर गोइंग टू सी दैट फॉर इवन द अदर रेगुलेशंस ऑल्सो, लेट्स से फेमा और इन सब के अंदर भी आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर का काम यहाँ पर आ जाएगा। आप बताइए, डज ऑल दीज मेक सेंस। मैंने जो आपको इतना पूरा बताया, डज ऑल दिस मेक सेंस, राइट। इसके अलावा और भी है ईसीबी के अंदर, बट अगेन एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न्ड, आपके लिए इतना ज्यादा और कुछ रहेगा नहीं। देखो एक बार हम यहाँ पे जो बेयर रेगुलेशन है उसको भी कवर कर लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट कैन वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग और नॉट। तो ये देखो, हमने ये ऑल इन सीलिंग कॉस्ट पढ़ा था, याद आ रहा है आपको, ये ऑल इन कॉस्ट का हमने सीलिंग यहाँ पर देखा था, और ऑल इन सीलिंग कॉस्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इट शुड नॉट बी, देखो एक्सपोर्ट दिस दिस दिस, आप देखो ये अलग अलग जो कॉस्ट आपको बता रहे हैं, आप ये देखो, अदर फीस, expenses, charges, guarantee fees, export credit agency charges will not be include commitment fees, withholding fees, and this should not be more than, ये देखो should not be more than the floating rate plus the applicable spread। और ये applicable spread इस वक्त कितना है, this is 450 bips। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो, ठीक है, एंड इट शुड नॉट एक्सीड 4% ऑफ द इशू साइज, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट पे कर रहे हो, एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखो ये ऑटोमेटिक रूट आपको दिया हुआ है, ठीक है, देन बेंचमार्क रेट आपको दे दिया है यहाँ पे, करेक्ट। सो ये आपको लिबोर जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, करेक्ट, तो ये आ जाएगा। और इंडिया के लिए अगर बेसिकली इंडियन रुपी में आपने लिया, सो द बेंचमार्क रेट फॉर द इंडियन रुपी विल बी द प्रिवेलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी का जो रूट रहेगा, ये आपको नहीं देखना है ना, एफएटीएफ कंप्लायंट कंट्री ये आपको बताया हुआ है, करेक्ट। देन फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड ये आपको सिखाया यहाँ पे मैंने। देन सेम वे यू हैव द फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, ठीक है। फॉरेन इक्विटी होल्डर जो अभी तक हम बार बार पढ़ रहे थे कि फॉरेन इक्विटी होल्डर से आप जनरल पर्पस कॉर्पोरेट लोन ले सकते हो, राइट, जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस लो, तो इसमें देखो बिल डायरेक्ट जिसके मिनिमम 25% इक्विटी होल्डिंग हो इन द बोरोइंग एंटिटी। मतलब आप ये देखो, दिस इज दैट इंडियन कंपनी, और ये इंडियन कंपनी में दो शेयर होल्डर्स है, ए एंड बी, बोथ आर नॉन रेसिडेंट। ए का बिजनेस में 3% स्टेक है, बी का बिजनेस में 30% स्टेक है। सो वर्किंग कैपिटल लोन ये दे सकता है, ये नहीं दे सकता, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे कवर किया था, देन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ये बताया हुआ, दिस इज ऑल गॉन। फिर आप ये देखो आईएस को कंप्लायंट कंट्री, राइट, और रियल एस्टेट एक्टिविटीज आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ईसीबी फ्रेमवर्क है। तो अब ये देखो ये हमने कवर कर लिया था। सो फॉरेन करेंसी में तो एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, एंड यहाँ पर इंडियन रुपी आपको दिया हुआ है। देन लेटर ऑन इफ यू जस्ट सी
एलिजिबल बोरोवर्स, तो आप ये देखो यहाँ पर क्या बताया, सी ऑल एंटिटीज विच आर एलिजिबल टू रिसीव एफडीआई दे कैन अवेल दिस, बट फर्दर इन लोगों के लिए क्या बताया हुआ है, ये ले सकते हैं खाली इंडियन रुपी, राइट, दे कैन टेक इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी, ये लोग ले सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखो ये आपके पास आ गया रिकॉग्नाइज्ड लेंडर, करेक्ट। अब मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड आप देखोगे तो देखो नॉर्मली इट इज व्हाट, नॉर्मली इट इज 3 years, बट देन डिपेंडिंग अपॉन ये टाइम आता है। फिर ये देखो ऑल इन सीलिंग कॉस्ट पर एनम, दिस इज द बेंचमार्क रेट प्लस 450% स्प्रेड, ये आ गया आपके पास। फिर अदर कॉस्ट्स में ये देखो ये पीनल इंटरेस्ट रेट अगर है तो दिस शुड नॉट बी मोर देन 2%, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे एंड यूज, ये आ गया आपके पास नेगेटिव लिस्ट आया ये वाला आपका। देन अगेन एक्सचेंज रेट आपको दिया, तो ये देखो एक्सचेंज रेट विल बी अगेन एज ऑन द डेट ऑफ द अग्रीमेंट आपका आ जाएगा। देन हेजिंग प्रोविजन यू कैन इग्नोर, दिस इज नॉट फॉर यू ऑल, एटलीस्ट राइट नाउ दिस इज नॉट फॉर यू ऑल, राइट। लिमिट्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, $70 70 million इक्विवेलेंट अंडर द ऑटोमेटिक रूट, करेक्ट। फिर डेट इक्विटी रेशियो भी यहाँ पर आपको मेंटेन करने को बोला गया है, दैट द ईसीबी लायबिलिटी रेशियो अंडर द ऑटोमेटिक रूट कैन नॉट एक्सीड 7:1 इक्विटी, मतलब ₹7 का ईसीबी और ₹1 का इक्विटी, ये आपको बताया है। देन इस ये आपको बताया है दैट दिस इज ऑल फाइन। पार्किंग ऑफ ईसीबी ये आपको दे दिया, पार्किंग ऑफ ईसीबी अब्रॉड, पार्किंग ऑफ ईसीबी डोमेस्टिकली, सो इवन दिस इज कवर्ड हियर, राइट। प्रोसीजर फॉर रेजिंग द ईसीबी ये आपको बताया। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दिया, दैट यू नीड लोन रजिस्ट्रेशन नंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। देन चेंजेस इन द टर्म्स अगेन यू नीड टू रिपोर्ट, मंथली ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो आपको यहाँ पर बताना होगा, और अगर आपने डिले कर दिया रिपोर्टिंग में तो देर आर पेनल्टीज विच अगेन यू कैन इग्नोर, ये देखो फॉर्म ईसीबी 2 एंड एवरीथिंग। फर्दर अगर आप देखोगे दिस इज अगेन फाइन, ये आपको दिमाग नहीं लगाना इन सब में, और यू विल ऑल्सो गेट दिस conversion of equity ECB into equity, so we have also covered this, correct. Then security of raising the ECB, तो इसके अंदर वही है, आप क्रिएट कर सकते हो, जो सिक्योरिटी आप क्रिएट कर सकते हो दिस कैन बी ऑन द इमूवेबल एसेट, मूवेबल एसेट, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हो सकता है, इशुएंस ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनल गारंटी, ये आपके पास एक सिक्योरिटी आ जाता है। सो दिस इज ऑल बेसिक फाइन, राइट। ये सब आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, दिस इज ऑल डन। फिर ये स्पेशल डिस्पेंशन है, दिस इज अगेन ऑप्शनल, नॉट नीडेड फॉर एग्जाम, दिस इज नॉट नीडेड फॉर एग्जाम, ओके। तो ये आपके पास अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आ गए। तो आप देखो यहाँ पर जैसे आ रहा है ना, अमाउंट 3 बिलियन आ गया, ऑल इन सीलिंग कॉस्ट अलग अलग आता है, तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट था, और यहाँ पर अलग अलग पॉइंट आ रहा है आपको। सो दिस इज देयर। अब यहाँ पर देखो ये आपके फॉर्म ईसीबी आ गए, जिसमें आप एलआरएन क्लेम करोगे, करेक्ट। तो ये आपको अलग अलग पर्पस और एवरीथिंग यहाँ पे बताया हुआ है। तो दिस ऑल फाइन, ये आपके उसी फोल्डर के अंदर जो मैंने आपको एक एबीसीएल का फोल्डर बना के दिया है, उसी फोल्डर में मैंने इसको डाल के रखा हुआ है, सो यू कैन एनी टाइम एक्सेस दैट फोल्डर and just understand this. Let's see from the module if they have included the latest one. This is the latest module I had just downloaded. Last जो मैंने module देखा था उसमें downloaded नहीं था, ठीक है। तो ECB में अगर हम चेक करते हैं पेज 186, so let's go to 210 पेज नंबर। Yeah, I think yes, fantastic. Module is also updated. तो आप ये देखो ये आपका ECB framework आ गया। So if you'll see, module is also nothing, ये आपका same जो पार्ट यहाँ पे बना के रखा हुआ है, जो मेन आपने मॉड्यूल के अंदर अपने हमने अभी जो ईसीबी का गाइडलाइंस देखा था, ये सेम आपके पास वैसा आ गया, राइट। तो इसमें आपके पास रह गया, तो इसमें बस खाली ये देख लेना, दिस यू कैन जस्ट रीड इट वंस, ये वाला पार्ट आप एक बार यहाँ पे रीड कर लेना, ईसीबी फैसिलिटी फॉर स्टार्टअप, दैट्स अगेन सेम, बट एक बार आप रीड कर लोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट, जस्ट इन केस यू गेट अ क्वेश्चन हियर, राइट। सो दैट्स इट इन ईसीबी। पेज नंबर ये देखो, ये यहाँ पे आपको मॉड्यूल के अंदर इंडेक्स में मिल जाएगा। सो इन मॉड्यूल इट इज पेज नंबर 185, ओके। और अगर आप पीडीएफ में देखोगे तो दिस इज पेज नंबर 239, राइट। मैंने आपके मॉड्यूल के अंदर मैंने उसी फोल्डर में रखा हुआ है। हाँ मैंने बताया मॉड्यूल इज नॉट अपडेटेड, इज एग्जैक्टली आई सेड यू। सो ये जो पीडीएफ है
इस पीडीएफ को मैंने उस फोल्डर में ही रखा हुआ है, सो एनी टाइम यू कैन रेफर दैट फोल्डर और आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हो. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. करेक्ट. Why I haven't you taken you in so much of detail? It is because of this. स्टिल आपके लेवल पे मैंने काफी कुछ आपसे डिस्कस कर लिया. मैंने आपसे इनफैक्ट ईसीबी का जो आरबीआई का रिपोर्ट था, ठीक है, मैंने वो आरबीआई का रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिया. बहुत सारे पॉइंट्स जो डिस्कशन के टाइम पे मेरा था, आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज टू फेमिलराइज द स्टूडेंट विद द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द ईसीबी. सो ये दोनों पार्ट हमने काफी अच्छे से डिटेल में कवर किया है. राइट. सो रिवाइज एवरीथिंग proper ECB, and that's it for this lecture. We meet tomorrow, and tomorrow we'll start some other chapter. So till then, take care. Bye bye.